2018, we did something on the Burj Al Arab. 2019, it was inside the Eiffel Tower in Paris. Come to 2022, we are hosting and unveiling the elite list, most influential Indians on top of the London Bridge. And this year, we are honored to have Mr. Rajat Sharma with us. And I believe there's nobody more influential than him. Thank you, sir, for accepting the honor and being part of our list. Thank you. Thank you for inviting me. So today, when we started this conversation, I wanted to talk to you about how it all started. Because I know there's a lot of young youth there listening to this small interview. You'd love to know, how did it all start? My life, when it began, wasn't really as sexy as it appears to be today, or it was not as elite as you would have wanted this to be. I was born in a very, very poor family. In Old Delhi, in Sabzi Mandi, on the 3rd floor of a building, there was a 10 by 10 room, 7 brothers, 1 sister, ailing mother, ailing father, 10 of us in that one room, holed up. There was no electricity in our house, there was no water in our house. So this is how the life started. नहाने के लिए हम गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहाँ जाते थे. रात को पढ़ने के लिए एक रेलवे स्टेशन था घर के पास, वहाँ रात में लाइट होती थी तो वहाँ जाता था. स्कूल एक ऑर्डिनरी स्कूल था जिसमें ज़मीन पर टाट पट्टी पर बैठते थे. So this is how the life began, and there was struggle and nothing else. We didn't have food to eat for months. I remember from America we used to get those powder meals for the poor. So we would stand in the queue and get some boxes of powdered milk, and that would have worked as our food for weeks and weeks together. That's wow! I did not know that. But again, I'm sure. Did you ever imagine all of this in even your wildest of dreams? उस टाइम पे अगर सोचते कभी भी सोच सकते थे कि ये this was your future? नहीं, इतनी गरीबी, इतनी तकलीफ, इतनी भूख, इतना अभाव था. So there was no way that one could think much. The dreams were very small. Actually dreams थे ही नहीं. लेकिन मेरे फादर ने कोई ड्रीम देखा, और उस ज़माने में एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी. अब एक सिर्फ टीवी चैनल होता था, दूरदर्शन, और उस पर सिनेमा दिखाया जाता, फिल्म दिखाई जाती थी. आधी फिल्म सैटरडे को आती थी और बाकी बची हुई संडे को. तो पड़ोस में एक घर था, वहाँ पे हम टीवी देखने जाते थे. तो एक बार सैटरडे को आधी फिल्म देखी, संडे को जब देखने गया सेकंड पार्ट, तो उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और काफ़ी देर खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला. मैं वापस आया घर, आँख में आंसू थे. मेरे फादर ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों आँख में आंसू हैं? तो मैंने कहा ये फिल्म देखने गए थे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया. तो उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें. क्या बात है. और ये ड्रीम उनका था जो बाद में पूरा हुआ. ड्रीम तो उन्होंने बहुत अच्छा है. आप सब, आई थिंक हम सब आपको देख के ही बड़े हुए हैं. मैं जब छोटा था मुझे लगता था अदालत ऐसी ही होती है, जिस तरीके से आपने दिखाया, दशत किया. एंड आई हैव ऑनेस्टली ग्रोन लुकिंग एंड वाचिंग यू. एंड व्हेन इट कम्स टू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीबडी मोर इन्फ्लुएंशियल देन you in our country today. Coming to your first, आपने दूरदर्शन job join किया. How did it start from there? No, it was not Doordarshan. Doordarshan was the government channel. First private TV channel was launched in 1992, end of 1992. Subhash Chandra launched ZTV. It had all kinds of programs. They were called Jangli Tufan, Tire Puncher, Saap Seedhi. It was a very funny, entertaining first private satellite TV channel. And I really had no connection with TV. I was working in a newspaper. I was editor of a newspaper at that time based in Mumbai. And we were on a flight where actor Gulshan Grover, who was in college with me, he was sitting next to me. He told me, do you know this fellow Subhash Chandra? He had a beard. So he said, do you know this fellow? So I said, yes, of course I know him. He comes to me for getting his news published about SL World and all. He said, no, he has started a channel. I said, yeah, he has started something. He said, if I get interviewed in this channel, it will help me in my career. My rate will go up. So I said, I'll tell him just now.
So Subhash Chandra, me and Ramesh Chauhan of Parle, we were all standing in the aisle and we were talking. So I told him, I said, Subhash ji, ये मेरा दोस्त है गुलशन, इसका इंटरव्यू कराओ आप अपने चैनल में. तो ही सेड कि देखिए जी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, कौन करेगा, मुझे थोड़ी इंटरव्यू करना आता है, आप इसका इंटरव्यू कर दो. आई फेल्ट ए लिटिल इंसल्टेड, मैं इतने बड़े अखबार का एडिटर हूँ एंड ही इज़ आस्किंग मी टू इंटरव्यू गुलशन ग्रोवर. सो आई टोल्ड हिम, I said, two people sitting talking to each other, how does it matter? Who is going to listen? He said, then I said, देखिए साहब, बड़े बड़े नेताओं को, सेलिब्रिटीज़ को कटघरे में बिठाओ और सामने ऑडियंस हो और उनसे सवाल पूछो, मेक देम अकाउंटेबल, तब जाके पता चलेगा कि इंटरव्यू क्या होता है. एंड देन द फ्लाइट लैंडेड, वी ऑल went back home. I completely forgot about the conversation. 3-4 days later, Subhash Chandra called me. He said, आपसे मिलने आना चाहता हूँ. तो I said, क्या हुआ, मैं आता हूँ. He said, नहीं, मुझे काम है. And he said, I discussed your idea of that Adalat show with my creative people, and they said it can be a really good show. I said, what show? He said, that you were saying. I said, no, I was only joking. He said, who will come and sit in the dock and answer questions? He said, no, he kept saying. So I told him, I'm sorry, Subhaji, I was only fabbing, there was nothing serious in it. I hadn't thought about a show or anything. But he kept insisting. Finally, it happened. 12th February 1993, the first Aapki Adalat was recorded. Wow, wonderful. I will come back to you the dream part. जब आपने बोला ड्रीम की बात, बहुत एक आइडिया पे और एक ड्रीम पे आएंगे हम. A lot of young youth, एक तो ड्रीम करने से डरते हैं. आज के ज़माने में भी फील, जैसे मैंने आपसे कहा, did you were you able to phantom it? बहुत लोग सोचते हैं कि ये कभी नहीं होगा, इसको सोचना नहीं है, इसको ड्रीम नहीं करना. और दूसरी बात, आइडिया छुपा के रखना. आइडिया बहुत लोगों के पास है, आइडिया आज की यंग एंटरप्रेन्योर्स के पास जनरेशन में बहुत होते हैं, बट वो कहते हैं नहीं, हम बताएंगे नहीं, हमारा आइडिया कोई और ना उठा ले, कोई और ना इसको कर ले. बट हमें भी बहुत लोगों से बात करी. एक रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू लिया, एक स्मॉल ओनर, वेरी ब्यूटीफुल ब्रांड कॉल्ड चायोस, राघव. ही इज ओपनिंग 200 आउटलेट नाउ, एंड ही हैड द सेम पॉइंट कि अगर वो मैंने आइडिया छुपा के रखा होता, डिस्कस नहीं किया होता, तो आज शायद हम यहाँ नहीं होते. सो एक टू अ यंगर ऑडियंस टुडे, व्हाट डू यू से, आपको बात करनी चाहिए, आइडिया देना चाहिए, एंड शुड यू ड्रीम बिग? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ. पहली तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, आपके मन में कोई आइडिया आया, आपके मन में कोई थॉट है और सबकॉन्शियस पे भी है, तो बात करो. डरना किस बात? अगर वो नहीं करते तो शायद आज आपकी आदत कभी शुरू नहीं होता. तो अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई थॉट है, तो बात करो और आप ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. कोई उसको चुरा के नहीं ले जा सकता. ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने आपकी अदालत करने की कोशिश नहीं की. पाकिस्तान में भी लोगों ने शुरू किया, कई जगह कोशिश की, लेकिन अगर आप ओरिजिनल हैं, आपके पास आपका आइडिया है और आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो फिर कोई आपसे आपका आइडिया चुरा नहीं सकता है. और दूसरी चीज़, ड्रीम्स के बारे में हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि दो तरह के सपने होते हैं. एक वो सपने जो हम रात में देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं. एक वो सपने होते हैं जो हम दिन में देखते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमें रात को नींद नहीं आती. तो वो सपने देखो जो पूरा करने के लिए आपको नींद ना आए, जिसके लिए आपको जान लगानी पड़े, मेहनत करनी पड़े. और सबके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सबको अवसर मिलते हैं. ये आपके ऊपर है कि आप उस अवसर को सफलता में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं. Wonderfully said. I totally agree. जो चीज़ आपको ना सुलाए उसी के उसमें वो है. You have to go and achieve that. अब दूसरी चीज़, entrepreneurial. We saw your career grow like anything. But coming as an entrepreneur, what challenges you face? Challenges, I'm sure एक entrepreneur stint लेने में बहुत effort लगता है. And चाहे कोई भी कह दे आसान, तो कुछ भी नहीं होता है. तो I'm sure you must have faced a lot of challenges. What were the major challenges you faced when you took that leap to become an entrepreneur yourself? ये आपकी बात सही है, आसान कुछ भी नहीं होता. Nothing comes easy. You really have to work hard, struggle and have patience to wait for the success. अगर आप बीच में घबरा गए, रास्ते में छोड़ दिया, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. जब हमने इंडिया टीवी शुरू किया था, एज एन एंटरप्राइज शुरू किया था, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई बैकिंग नहीं थी, कोई इंडस्ट्रिस्ट हमें बैक नहीं कर रहा था. हमने बैंक से लोन लेके शुरू किया था
2 साल बाद ये हालत हो गई थी कि बैंक के लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे थे, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे थे, बैंक हमें एनपीए डिक्लेयर करने पर आ गया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हर क्राइसिस को हमने अपॉर्चुनिटी में बदला। जब मुसीबत आती थी हम ये सोचते थे नहीं इस मुसीबत को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, और वो हमने करके दिखाया। और मैं और मेरी वाइफ ऋतु जो मेरे साथ इस पूरे वेंचर में शामिल थी, और बेसिकली बिजनेस देखना, पैसे का इंतज़ाम करना, ये ज़्यादा उनके ऊपर था, मेरी जिम्मेदारी एडिटोरियल थी। लेकिन हम दोनों ने मिलके स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते होश ही नहीं रहा कि हमारी ज़िंदगी का जो यूथ था वो कब निकल गया। लेकिन जब सक्सेस मिली तो बहुत सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि हमारे अपनी मेहनत से, बिना किसी का एहसान लिए, बिना किसी का फेवर लिए, हमारे अपने दिमाग से, हमारी अपनी मेहनत से, हमारे अपने स्ट्रगल से हमने ये हासिल किया। बड़ा बताएं, आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वही वाली बात आती है ना, कहाँ आपने क्या कैसे दिन देखे आपने हमें बताया, और आज यहाँ पे it is an inspiration to so many people can realize with hard work, with a good intention, and with the idea that the dreams which you have, which doesn't make you sleep, you can achieve everything. कि मुझे वो दिन याद है कि जब हम इंडिया टीवी शुरू किया था, और जब बैंक से जो पैसे मिले थे वो ख़त्म हो गए थे, इतने सारे लोग काम करते थे, 600-700 लोग हमारे साथ काम करते थे, सैलरी देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन हम किसी से कह भी नहीं सकते थे। हर महीने की आखिर में 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में हम दोनों सिर्फ आपस में बात कर रहे होते, अब कहाँ से इंतज़ाम करें कि सैलरी दे सकें। कभी जो प्रॉपर्टी थी उसको मॉर्गेज किया, 2-3 महीने काम चला, यहाँ तक कि जो उनके गहने थे, जेवर थे, ज्वेलरी थी, उसको हमने गिरवी रखा, उससे पैसे लेकर सैलरी दी। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मुझे हमेशा अपने फादर की एक बात याद आती थी। जब हम गरीबी के दौर से गुजर रहे थे, तो एक दिन मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा खुश क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा खुश रहने के लिए क्या है, न कपड़े हैं, न स्कूल है, न खाने को है, न रहने को है। तो उन्होंने कहा देखो, अगर अच्छा घर होता, अच्छी गाड़ी होती, अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, तो कोई भी खुश रह सकता है। गरीबी में, मुसीबत में, अभाव में खुश रह के दिखाओ तो माने। ये मुझे उस वक्त काम आया जब वाकई में संघर्ष था, जब वाकई में स्ट्रगल था, जब एक एक पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा था। वही वाली बात है ना। आप देखिए, काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि आपने जब स्टार्ट किया होगा, आप एंटरप्रेन्योर के उसमें आए, तो मस्ट हैव बीन ईजी। आई एम श्योर बहुत लोगों को लगता होगा कि अब रजत जी जब कुछ शुरू करेंगे तो इतने तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उन्हें। बट आई एम श्योर जो आज सब लोग देखेंगे, सुनेंगे कि आपको भी इतने चैलेंजेस हुए। एंड आई एम श्योर इतने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के ज़माने में जो एक छोटा सा आइडिया लेके कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी जॉब छोड़ के सोचना चाह रहे हैं कि नहीं, हम अब आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दैट इज द मूवमेंट इन द कंट्री टुडे। एवरीबडी वांट्स टू डू दैट, एंड वी आर हैप्पी टू सी दैट। एंड दैट्स सच अमेजिंग कंपनीज, हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग कंपनीज, इतने यूनिकॉर्न्स हमारी कंट्री ने। वी हैव obviously we have changed the way we look at entrepreneurship in India. So I'm sure a lot of people listening to you today will say that challenges तो चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, challenges तो आएंगे ही आएंगे। Making sure that you live up to the challenges, making sure you keep on going ahead and everything. I think that's a very big inspiration. I'm thankful to sharing this story with everybody today. अब थोड़ा इसको हल्के उस पर ले जाते हैं। भाई एक बात ज़रूर, आपने स्ट्रगलर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की बात की है, उनसे कहना चाहता हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं अब बिज़नेस शुरू करूँगा और मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, और इससे मुझे 5 करोड़ मिल जाएंगे, उससे 2 करोड़ मिल जाएंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे और मैं काम चला लूँगा। कोई पैसे नहीं देता। कोई आपका कितना भी दोस्त हो, किसी के पास कितने भी पैसे हों, कोई आपको आसानी से पैसा नहीं देगा। उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ओनली देन यू गेट मनी। तो कोई ये इस तरह के सपने ना देख ले कि भाई ये तो मेरा दोस्त है, मैं इससे पैसे ले लूँगा। नहीं होता है ये। You need to prove your worth. Absolutely. And your product has to prove its worth. So वो तो मैं मानता ही हूँ, but as I said, थोड़ा आप उस पर डिफरेंट है। वो ज़माने अलग थे। आज as I see, you have achieved success in all angles. India TV is one of the number one channel in the country today. As an entrepreneur, you're successful. What are your passions other than that? अब luxury आप enjoy. Elite, after all, when you're talking about luxury, what is your favorite form of luxury? हर लग्जरी।
मैं समझता हूँ कि 40 साल ज़िंदगी के मैंने स्ट्रगल में बिताए, मेरे पास कुछ नहीं था। अब जो कुछ है तो मैं हर तरह की चीज़ देखना चाहता हूँ। मैं दुनिया के बेस्ट डेस्टिनेशन देखना चाहता हूँ, दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना चाहता हूँ, दुनिया के बेस्ट होटल स्वीट्स में ठहरना चाहता हूँ। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं इस बारे में बिल्कुल छुपाता नहीं हूँ। ये मेरी एम्बिशन है, चाहे कार हो चाहे कुछ हो। हाँ, ये कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं देगा, इसके बगैर मैं कोई रोने नहीं लग जाता हूँ। लेकिन आई रियली वॉन्ट टू फील एंड सी एवरीथिंग। सबसे फेवरेट चीज़ आपकी क्या है लग्जरी में? अगर आज बोलते हैं ट्रैवल इज़ योर फेवरेट, ऑटोमोबाइल्स किस चीज़ में? सी ट्रैवल है, ऑटोमोबाइल्स है, लेकिन ट्रैवल के लिए टाइम नहीं है। आई हैव टू डू ए डेली शो एवरी डे, सो मंडे टू फ्राइडे द लाइव शो दैट आई हैव टू डू. So travel is very limited, but I really want to go to best of the destination in the world. I will not take much of time. One more last question. Perspective. एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, हम हमेशा सोचते हैं जो हम पहले थे, आज आप सोचेंगे 5 साल पहले जो मैं सोचता था, ओ मैं कितना बेवकूफ़ था. आज दैट परस्पेक्टिव, डू यू फील दैट परस्पेक्टिव चेंज? आप अपने आप को पुराने से दिखते थे, आज दिखते थे, किस तरीके से आपका परस्पेक्टिव चेंज हुआ है दुनिया के अगेंस्ट? आज भी चेंज नहीं हुआ, सेम रहा है. आज जब मैं अपने पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं कितना आगे आ गया, लेकिन अपने आगे देखता हूँ तो फिर लगता है नहीं, अभी कितना दूर और जाना है. So, but your ideology remains the same. You have not had a different vision. मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है, मैंने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा है, मैंने दूसरे प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा है, और रोज़ अपने आप को एक ही बात कहता हूँ, सक्सेस का, सफलता का अहंकार नहीं आना चाहिए. पैर ज़मीन पर रहें और लोगों के साथ मिलकर चलें, यही सबसे बड़ा तरीका, और ये मैं कभी नहीं बदलूंगा. That's wonderful. I think that last line that you said will resonate within a lot of people. आज I think वो एक चीज़ बहुत लोगों को सीखनी है, बहुत लोगों को समझनी है कि अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो खाली अंत ही करती है, उसका किसी से फ़ायदा नहीं होता है. But thank you so much, Rajat ji. It is an honor to have you with us in our list for 2022, and we're looking forward to having you there with us in London and celebrating and unveiling the list of the most influential Indians. Thank you so much. It's an honor. My name is Puruskar Thanani. I'm the editor for Elite Magazine India. And sorry for being a little nervous here, because after all, I'm sitting and interviewing Mr. Sharma today here, which is an honor really. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.